السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کیا ریاست میں جلد انتخابات ہوں گے؟ کے ٹی آر اور مشیر اعلیٰ کی دہلی میں الیکشن کمشنر سے ملاقات، سیاسی حلقوں میں ہلچل، کل پارٹی کے توسیعی اجلاس پر تجسس۔ قبل از وقت انتخابات، کے سی آر کا ڈرامہ، 2 ستمبر کو ٹی آر ایس کا جلسہ نہیں ہوگا، ریونت ریڈی کا دعویٰ۔ راشن ڈیلرز کو فی کلو 70 پیسے کمیشن دیا جائے گا، 21 ستمبر سے عمل آوری، بقایا جات کی ادائیگی کرنے کابینی ذیلی کمیٹی کا فیصلہ۔ اور ہیرے جڑے زیورات کا سرقہ کرنے والا سارق ہوا گرفتار، پنجاگٹا پولیس نے ایک اور سارق کے قبضے سے 12 لاکھ روپے مالیتی کار کو بھی ضبط کر لیا۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ ریاست میں قبل از وقت انتخابات ایک معمہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے فیصلوں سے ٹی آر ایس قائدین بھی پریشان ہیں، کیونکہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے یا نہیں، اس کا خلاصہ نہیں ہو رہا۔ چہارشنبے کے دن وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے غیر سرکاری طور پر کابینہ کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس سلسلے میں وزراء سے رائے مشورہ کیا، لیکن انتخابات کو لے کر وزیر اعلیٰ نے کوئی واضح موقف ظاہر نہیں کیا۔ 6 تا 7 گھنٹے چلے اس اجلاس میں دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد اور جلد انتخابات کروانے سے پارٹی کو ہونے والے نقصانات اور فائدے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ میں جلد انتخابات کے لیے ٹیکنیکل وجوہات پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے۔ کابینی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے 2 ستمبر کو پرگتی رپورٹ پیش کرنے کا جو اعلان کیا تھا، اس سلسلے میں جلسے عام منعقد کرنے کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جمعرات کے دن وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ اور مشیر اعلیٰ راجیو شرما نے دہلی میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات دیگر 4 ریاستوں کے ساتھ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کروانے کے سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کے دوران کابینہ اجلاس اور دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قبل از وقت انتخابات کے معمے کا حل بھی کے سی آر کے پاس ہی ہے۔ امکان ہے کہ جمعہ کے دن ٹی آر ایس پارٹی کے توسیعی اجلاس کے بعد کسی قدر اس معمے کی گتھی سلجھنے کے قوی امکانات ہیں، یا پھر کے سی آر اس معمے کے ذریعے مزید کچھ دن قائدین کو الجھا کر رکھ سکتے ہیں۔ کانگریس کے لیڈر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں قبل از انتخابات کے سی آر کا ڈرامہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق 2 ستمبر کو پرگتی رپورٹ نامی جو جلسے عام منعقد کرنے والے ہیں وہ بھی منعقد نہیں کریں گے، کیونکہ رپورٹ حکومت کے خلاف ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر کے سی آر جلسہ منعقد کرتے ہیں تو وہ اس جلسے میں حکومت کی ناکامیوں پر کھلے عام مباحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر پارٹی میں دبی بغاوت اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ قبل از وقت انتخابات کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نریندر مودی کے سی آر کو قبل از وقت انتخابات کے لیے تعاون کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ کانگریس پارٹی کس سے مفاہمت کرے گی، اس کا فیصلہ اعلیٰ کمان کرے گی۔ تلنگانہ حکومت نے راشن ڈیلرز کے دیرینہ مسئلے کی یکسوئی کرتے ہوئے راشن ڈیلرز کو فی کلو چاول پر 70 پیسے کمیشن دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر فائنانس ای راجندر کی صدارت میں منعقدہ کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں فی کلو 20 پیسے کمیشن کو 70 پیسے کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔
इस फैसले पर 1 सितंबर से अमलावरी होगी। झेली कमेटी ने 2015 से राशन डीलर्स के जो बकायाजात हैं इसको भी जल्द अज जल्द अदा करने का फैसला लिया है। इजलास के दौरान वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल जारी रहेगा और नए ग्राम पंचायतों में नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी और जो दुकानात राशन डीलर्स ना होने पर बंद हैं इनको दोबारा खोला जाएगा। इस मौके पर राशन डीलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया और गैर कानूनी चावल की मुंतकली की रोकथाम में मुकम्मल ताउन करने का तयक़ुन दिया है। झेली कमेटी के इजलास में रियासती वज़रा हरीश राव, जोगी रामन्ना के अलावा ओहदेदार और राशन डीलर्स के नुमाइंदे मौजूद रहे। బియ్యం డీలర్లకి ఫర్ కేజీ రైస్ కిలో రైస్కి 70 పైసల చొప్పున ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ పెంచిన 70 పైసల కమిషన్ సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖు నుంచి అమలు చేయాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది। అదేవిధంగా నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భాగస్వామిగా ఉంది కాబట్టి 2015 అక్టోబర్ 1వ తారీఖు నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ప్రకారంగా వాళ్ళిచ్చే బియ్యానికి వాళ్ళిచ్చే ప్రజల సంఖ్యకి వాళ్ళు కొంత కమిషన్ పెంచి సగం వాళ్ళు సగం మేము ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఆ కమిషన్ ఆ పాత బకాయిలు కూడా 1,91,00,000 మందికి 5 కిలోల చొప్పున ఇచ్చినటువంటి బియ్యానికి సంబంధించినటువంటి కమిషన్ అయితే ఉందో ఆ పాత బకాయిని కూడా బియ్యం డీలర్లకు చెల్లించండి అని చెప్పి बर-ए-आज़म अफ्रीका के फ्रांसीसी सरकारी ज़बान रखने वाले ममालिक के 23 सहाफ़ियों और एडिटर्स की एक वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी ने सेहत, शहरी तरक्यात, ज़राअत, सनत, फूड प्रोसेसिंग के शोबों में अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए जाने के इक़दामात का तज़किरा किया। इन्होंने रियासत तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस वफ़द को वाकिफ़ करवाया। इन्होंने शहर हैदराबाद की 450 साला तारीख़, तहज़ीब और यहाँ के मिलनसार अवाम की बाबत वफ़द के अरकान को मालूमात फराहम की हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व आला मियारी तालीमी इदारों, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों की तरक्की के मदारिज बयान किए। रियासत में सेहत आम्मा, शजरकारी, मिशन काकतिया, किसानों के लिए शुरू की गई स्कीमात, ऋतु बंधु, बीमा का जिक्र किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा फार्मा, डिफेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटल, सर्विस सेक्टर के माशी तरक्की में बढ़ते हुए रोल को बयान किया है। इंडिया अफ्रीका तीसरी चोटी कॉन्फ्रेंस के तहत अफ्रीकी सहाफ़ियों का ये वफ़द 19 से 25 अगस्त हिंदुस्तान के दौरे पर है। जुमेरात के दिन इस वफ़द ने मेट्रो रेल का सफ़र किया और इसके इंतज़ामात के सिलसिले में MVS रेड्डी से भी तबादले ख्याल किया। 22 से 25 अगस्त तक इस वफ़द के अरकान हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। अपने यहाँ क़याम के दौरान वफ़द के अरकान टी हब, TCS, जीनोम वैली, रामोजी फिल्म सिटी, फलकनुमा पैलेस, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज़ियागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात का मुशाहिदा करेंगे। कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा अरविंद कुमार और दूसरे आला रियासती ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। तेलंगाना हुकूमत ने ग्राम पंचायतों के लिए 9,355 मखलूआ जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज के तक़र्रुरात के लिए अहकामात जारी किए। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन शिवशंकर ने महकमे पंचायत राज को हिदायत दी है कि इन 9,355 जायदादों के तक़र्रुरात महकमे जाती तौर पर किए जाएं। तक़र्रुरात के दौरान शफ़ाफियत, तहफ़्फ़ुज़ात और रोस्टर सिस्टम पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए।
शिव शंकर ने कहा कि तकर्रुरात के दौरान सदारती हुक्मनामा और सर्विस रूल्स पर अमल किया जाए। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा कि संगारेनी कॉलोनीज के 80% मौरूसी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए राह हमवार हो चुकी है। कविता ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बात करते हुए कविता ने कहा कि मार्च 2018 तक मखलूआ मौरूसी जायदादों पर तकर्रुरात हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि अब तक 4500 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 1600 दरखास्तों की यकसुई करते हुए मौरूसी जायदादें फराहम की जा चुकी हैं। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो मसाइल पेश आ रहे हैं इसको दूर किया जाएगा। कविता ने बताया कि वज़ीर आला ने संगारेनी मुलाजमीन से जो वादे किए थे इसे पूरा किया जाएगा। యూనియన్ కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులందరం కూడా సింగరేణి యాజమాన్యం మొత్తం వారితోని కలవడం జరిగింది। చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఎక్కడన్నా ఈ అంశాల్లో ఉంటే వాటిని సరిదిద్దే విధంగా మార్చి 28, 2018 నాటికి అప్లై చేసుకునేటప్పుడు 2 సంవత్సరాలు మాత్రం ఇంకా రిటైర్మెంట్కి ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క జీవో వర్తించే విధంగా ఉండేటట్టుగా చిన్న చిన్న సవరణలు, చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుండి వచ్చినవన్నిటిని కూడా మరి చాలా మానవతా దృక్పథంతో పరిశీలించాలని చెప్పి సింగరేణి యాజమాన్యాన్ని మేము టీబీజీకేఎస్ నుంచి కోరడం జరిగింది। వారి నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చింది। దాదాపు 26 అంశాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే కార్మికులకు అదేవిధంగా ఆఫీసర్స్కి మాట ఇచ్చారో అవన్నిటినీ కూడా ఇవాళ మేము పరిపూర్ణంగా చేశామని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాను। ఇవన్నీ కూడా కోల్ ఇండియా చరిత్రలో కానీ సింగరేణి చరిత్రలో కానీ ఎన్నడూ జరగలేదు। కేవలం కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ బిడ్డ కాబట్టి, తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మికుల యొక్క కష్టం తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి వారి ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి జరిగిందని తెలియజేయడానికి నేను గర్వపడతా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में तकरीब ईद मिलाद मुनक्किद की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा अराकीन असम्बली, अराकीन बलदिया, सीनियर व सरगर्म मजलिसी कारकुन और मुहिब्बान मजलिस इस मौके पर मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद इस ईद मिलाद तकरीब में शरीक थी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पूरे पुरअमन तरीक़े से और अच्छे तरीक़े से ईद हम तमाम मना सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मजलिसी अराकीन का कि जिन्होंने ख़ास तौर से ईदगाह जो मुख्तलिफ़ शहर में ईदगाहें हैं या फिर अज़ला में वहाँ पर उनके साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया, अच्छा एहतमाम किया और फिर ईद के बाद जो सफाई का भी इंतज़ाम है वह अभी भी जारी है। ये एक अहम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया गया है। तीसरी अहम बात यह है कि हम देखते हैं कि हर साल ख़ास तौर से बकरीद जब आती है, ईद उल अज़हा के मौके पर शहर हैदराबाद और मुख्तलिफ़ अज़ला में और मुख्तलिफ़ रियासतों में एक पुलिस की तरफ से एक आउट पोस्ट लगा दिया जाता है। मैं आज तक इस बात को समझने से क़ासिर हूँ कि आखिर इस पुलिस आउट पोस्ट को लगाने का मकसद क्या है। जैसा ही ईद से 3 दिन पहले 2 दिन पहले शहर के तमाम अहम दाखिले के रास्तों पर या फिर मुख्तलिफ़ मुकामात पर आउट पोस्ट लगा दिया जाता है। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि आज कल ईद हो गई, आज से आउट पोस्ट बर्खास्त है, बल्कि कल ईद के बाद से ही वहाँ पर कोई पुलिस का कांस्टेबल या ज़िम्मेदार नज़र नहीं आते। आखिर इसकी क्या वजह है कि हम अपनी ईद को भी जब मनाते हैं तो पुलिस आउट पोस्ट लगा दिया जाता है और फिर ये बताना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि आखिर ये कौन सी ऐसी इनको जानवर से मोहब्बत है कि सिर्फ ईद से 2 दिन पहले और ईद के बाद वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती। अगर मोहब्बत है तो फिर आप इस बात का ख्याल रखिए कि साल के 11 महीने 24-25 दिन आप ये आउट पोस्ट लगाइए।
मगर सिर्फ ईद से 2 दिन पहले, और फिर यकीनन गाय के काटने के ख़िलाफ़ हमारी रियासत में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में क़ानून है, उस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होनी चाहिए। मगर हुकूमत को और पुलिस को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई बैल ख़रीद कर लेकर आता है जिसमें कोई गाय नहीं है, तो फिर बेचने वाला कौन है? ये बेचने वाला तो कोई ख़रीदने वाला तो नहीं है, वो बेचने वाला क्यों बेच रहा है और इसकी क्या मजबूरी है? इसका इंतज़ाम तो हुकूमत को करना चाहिए। इसके ऊपर तवज्जो नहीं ली जाती, बल्कि पुलिस का आउटपोस्ट लगा दिए और फिर जैसे ईद की नमाज हुई ये पूरे के पूरे गायब। तो ये एक अजीब व गरीब मोहब्बत है, और इस मोहब्बत से, बल्कि मोहब्बत नहीं बल्कि ये एक गैर ज़रूरी के तकलीफ़ देने का काम है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हो सकता है कि दिसंबर में इंतखाबात हो जाएं। मैं पिछले 6, 7, 8 महीने से इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंतखाबात के लिए तैयार रहिए। और आप देख रहे हैं कि हालात और हवाओं में जो खुशबू है वो इस बात की तरफ इशारा देती है कि हो सकता है कि मेरी बात सच साबित हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन है, मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप और हमको इस इंतखाबात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, मगर मेरी इस बात पर तवज्जो नहीं ली जा रही है। मैंने हमेशा यह अर्ज़ किया है कि तंजीम को मजबूत करिए, मगर कई असम्बली हल्क़े-जात में हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर हमारे इब्तदाई के शाख नहीं है। अब मैंने फ़ैसला लिया है कि मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला मेरी रास निगरानी में उन असम्बली हल्क़े-जात में जहाँ पर पोलिंग बूथ पर हमारी इब्तदाई नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद ज़िम्मेदारी लेकर वहाँ पर हमारे बूथ पर हमारी इब्तदाई को तश्कील दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस काम में आपके ताउन की ज़रूरत है, और जहाँ पर इब्तदाई नहीं है वहाँ पर हमको ज़िम्मेदारान की और जिसके दिलों में एक जज्बा है काम करने का, उन हज़रात को हमको सामने लाना पड़ेगा, ख़ास तौर से नौजवानों को, कि वो ये ज़िम्मेदारी उठाएं और अपनी जमात को मजबूत करें। मैं सदर मुतमदीन से और अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी ये आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि आपको मुतहरिक और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। आपको मुतहरिक रहना है। जमात के लिए हमेशा आपने काम कर किया है, मेहनतें की हैं, और किसी की बात का परवाह किए बगैर आप आगे बढ़कर इस जमात की एक अहम जिम्मेदारी जो हम तमाम पर आयद है कि असम्बली हो या पार्लिमानी इंतखाबात हो, इन इंतखाबात में हमको अपनी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करना है। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से केसीआर हुकूमत ने झूठे इश्तिहारात के जरिए अपनी तशहीर की है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इश्तिहारात के जरिए रियासती अवाम को नहीं बल्कि मुल्क के अवाम को भी गुमराह किया गया है। इन्होंने कहा कि नागराज नामी शख्स की 1 सेंट अराजी ना होने के बावजूद इनकी फोटो को रैतु बंधु स्कीम के इश्तिहार में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद रैतु बीमा स्कीम में भी उनकी और उनकी अहलिया की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जबकि कंटी वेलुगु प्रोग्राम के इश्तिहार में उनकी अहलिया के साथ नागराज की जगह किसी दूसरे शख्स को शौहर के तौर पर पेश कर दिया गया, जिससे नागराज की अहलिया दिल बर्दाश्त हो गई और वो हुकूमत से इंसाफ तलब कर रही है। कांग्रेस के रुकने असेंबली DK अरुणा ने कहा है कि केसीआर अपनी मकबूलियत के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ तशहीर की है, काम कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि किसी दूसरे शख्स के साथ खातून का शौहर बताकर पेश करना खातून की तौहीन है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब केसीआर को देना चाहिए।
इन्होंने कहा कि नागराज के खानदान से केसीआर को मुआफी मांगनी चाहिए और इस खानदान को हर्जाना अदा किया जाए। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में कंटी वेलुगु मुफ्त आंखों के मुआयने का प्रोग्राम जारी है। 15 अगस्त से अब तक 22,755 अफराद के आंखों का मुआयना किया गया है, जिनमें 5,587 अफराद को ऐनक फराहम की गई और 3,539 अफराद को ऑपरेशन के लिए सिफारिश की गई है। अजीम तर हैदराबाद बलदिया कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम से इस्तिफादा करें। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में ईद उल अजहा के मौके पर बलदिया की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में बड़े पैमाने पर सफाई का काम अंजाम दिया गया है। जुमेरात की सुबह तक 3,510 मैट्रिक टन कचरे की नकासी की गई। वाज़ेह है कि ईद उल अजहा के मौके पर चारशंबे के दिन सुबह से ही बलदिया का अमला मुतहर्रिक देखा गया। चारशंबे के दिन 2,000 मैट्रिक टन कचरे की नकासी अमल में आई। कचरे की नकासी का सिलसिला जुमा की शाम तक जारी रहेगा। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने ईद उल अजहा के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और रियासत में अक़लियतों के लिए जारी मुख्तलिफ स्कीमात पर तबादला ख्याल किया है। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के बाद इन्होंने बताया कि अक़लियतों को दरपेश मसाइल पर इन्होंने वज़ीर आला से नुमाइंदगी की है। औक़ाफ़ी इमलाक और अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से वाकिफ़ करवाया गया। अक़लियतों के तालीमी तरक्की के लिए इक़ामती स्कूल्स के क़याम, शादी मुबारक स्कीम, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम को खुश आइन करार दिया है। वज़ीर आला ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड को ईद की मुबारकबाद पेश की और उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। पुलिस वालों के बारे में कुछ अफराद मनफी राय रखते हैं, लेकिन पुलिस में कई ऐसे इंसान दोस्त भी हैं जिनकी जिंदगी का मकसद कार खैर करना है। केरला के हालिया सैलाब से हुई तबाही पर चारमीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल टी राजू ने अपनी 1 माह की तनख्वाह बतौर अतिया देने का ऐलान किया। इन्होंने बताया कि वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइंदा माह उनकी ड्यूटी के 28 साल मुकम्मल होंगे। हर माह वो यतीमों और नादिर की अपनी आमदनी से मदद करते हैं। केरला में सैलाब से तबाही पर उनका दिल पिसज गया और इन्होंने अपनी 1 माह की तनख्वाह 68,000 रुपये सैलाब के मुतासरीन को बतौर अतिया देने का फैसला लिया है। इसके अलावा आइंदा माह वज़ीर आला के रिलीफ फंड में 10,000 रुपये का वो अतिया देंगे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और कमिश्नर सिटी पुलिस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने केरला के मुतासरीन के लिए फराख दिलाना इमदाद की ज़रूरत का इजहार किया है। केरला में फ्लड है ना, वो देख के मेरा दिल पे बहुत असर गिर गया। मैं बचपन से जो है सो बहुत मेहनत करके ये स्टेज को आया और ये डोनेट करा ना भाई पैसे, मेरे देख के मेरे साथियाँ भी ऐसा डोनेट करे तो बहुत अच्छा रहता। मैं जब अपार्टमेंट हुआ तो 1,500 रुपये सैलरी था मेरा, 90 बैच का कांस्टेबल हूँ मैं। अब जो है सो 68,200 है मेरा ग्रास सैलरी, वो पूरा 1 मंथ का सैलरी में डोनेट कर दिया। और ये छोड़ के एवरी मंथ जो है सो ये ऑर्फन्स रहते ना, उन लोगों को एवरी मंथ जो है सो 500 रुपये पेमेंट में रिकवरी होता। और जो अंधे रहते उन लोगों को भी 500 रुपये पर मंथ रिकवरी। ये मेडपल्ली में एक ऑर्फन हॉस्टल है, उसको भी पर मंथ जाके बाय हैंड दे देता हूँ 500 रुपये। नेक्स्ट जो है सो मेरा टारगेट सीएम रिलीफ फंड को जो है सो ये पीआरसी होने के बाद में 1,000 रुपीज़ देना चाह रहा हूँ। बलदिया संगारेड्डी की मुबैना लापरवाही की वजह से ईद के मौके पर मुलाकात के लिए जाने वाला एक जोड़ा और उनके 2 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ त्यौहारों के मौके पर बलदिया संगारेड्डी की जानिब से सड़क के गड्ढों को भरकर रास्ता साफ किया जाता है, लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी के बावजूद बलदिया ने सड़कों के कामों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया।
जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार ये चारों जख्मी हो गए। पंजागुट्टा पुलिस ने हीरे जड़े हुई तलाई नेकलेस चुराने वाले एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने रियासत राजस्थान के रहने वाले 40 साल अरुण सिंह को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में सुकूनत इख्तियार रखे हुए था। इन्होंने बताया कि मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा नीलम की कार से 17 अगस्त को हीरे जड़े हुए नेकलेस और हीरे जड़े हुए कान की बालियों का सरका कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूका जेवरात के अलावा एक कार भी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि हीरे जड़े तलाई जेवरात की मालियत 14,85,000 थी। एक और वाक़े में पंजागुट्टा पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश के मतुवत्तिन TS राजू को गिरफ्तार किया, जिस पर कार चुराने का इल्जाम है। इन्होंने बताया कि 19 जुलाई को मुलजिम मसरूका कार को निम्स हॉस्पिटल के पास पार्क करके पार्किंग का टोकन लेकर काकीनाडा चला गया। इसने 21 अगस्त की शब काकीनाडा से शहर आकर मसरूका कार को बोइनपल्ली के इलाके में फरोख्त करने के इरादे से ले गया, जहां इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती कार को बरामद कर लिया है। पंजागुट्टा पुलिस ने इलाका अजीं चांदी के प्लेट्स चुराने वाली 4 खातून सारिकों को भी गिरफ्तार किया। पंजागुट्टा पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने के वेंकटा, के ज्योति उर्फ जोशना, S मंगनम्मा और के कृष्णा उर्फ नरहरी को गिरफ्तार कर लिया, जो दुंडगिल की रहने वाली हैं। इन्होंने बताया कि मुलजिमीन एक ज्वेलरी शॉप से जेवरात खरीदने के बहाने सेल्समैन की तवज्जो हटाकर 4 चांदी की प्लेटों का सरका किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मसरूका अशिया बरामद कर ली हैं, जो करीब 2 किलो वजनी हैं। पुलिस ने इन चारों को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्या रियासत में जल्द इंतखाबात होंगे? KTR और मुशीर आला की दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल। कल पार्टी के तौसी इजलास पर तजस्सुस। कबल अज वक्त इंतखाबात, KCR का ड्रामा। 2 सितंबर को TRS का जलसा नहीं होगा, रेवंत रेड्डी का दावा। राशन डीलर्स को फी किलो 70 पैसे कमीशन दिया जाएगा। 21 सितंबर से अमल आवरी। बकाया जात की अदायगी करने काबीनी ज़ेली कमेटी का फैसला। और हीरे जड़े जेवरात का सरका करने वाला सारिक हुआ गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने एक और सारिक के कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती कार को भी जब्त कर लिया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।